Morning children, welcome to your GK class. Today children, we'll just continue where we had stopped in our previous class. Okay, in previous class we learnt about the death cap, and the next is the lady glove. Okay, these two plants we were learning about the chapter number 15. The title was When Plants Turn Deadly. Okay, so we had learned about the poisonous mushroom called death cap, and then we also learnt about another plant which is also very poisonous plant, which is the lady glove. Okay, so we came to know about these two plants. Now the next plant. Okay, now see, can you guess this plant? Can you guess this vegetable? Yes, this is a potato. Okay, this plant is a very famous as a food. It turns green, and there are possibilities that it may contain solanine, which is a poison. Now children, ये कौन सा वेजिटेबल है? ये पोटैटो. आप सबका फेवरेट है, आप सबको पसंद है पोटैटो. Yes, it is a very टेस्टी वेजिटेबल. नाउ आपको इस वेजिटेबल में क्या ध्यान देना है कि ये जो पोटैटो है ये इस तरह से, कैन यू लुक हियर, यू कैन, yes, can you see this potato is slightly green. Now these type of potatoes you should avoid eating, okay, because they may contain solanine. Okay, it is a form of poison, तो ये आपको बीमार कर सकता है. Okay children, so make sure that children you are very particular about this. क्योंकि ये पोटैटो जो है रेडिली अवेलेबल है आपके मार्केट में एंड आपके घर पे भी. ओके, सो आपको बहुत ध्यान देना है कि अगर जो पोटैटो ग्रीन है आप उसे ना यूज़ करें. ओके, वाई? बिकॉज इट में हार्म. ओके, सो दिस इज अ पोटैटो. सो राइट चिल्ड्रन, आप क्या लिखेंगे वहाँ पे? पोटैटो. ओके, now children, after potato the next picture is of this beautiful plant. Now the information which has been provided to us about this plant is it is used by the South American Indian tribes to make their arrows poisonous for hunting. Now these plants, okay, now you can see here up close. अब ये जो प्लांट है इसे जो साउथ अमेरिकन इंडियन ट्राइब्स है वो उसे अपने एरो के लिए यूज़ करते हैं. तो सपोज नाउ लेट अस सी, दिस इज द एरो. ओके, ये इनका एरो हो गया. ओके, जिससे वो हंट करते थे. ओके, सो व्हाट दे यूज टू डू कि ये इस प्लांट का जो पॉइजन है उसे यहाँ पे टिप पे लगा देते थे. ओके, तो यहाँ पर इसे यहाँ पे अपने एरोज को पॉइजन करके हंटिंग के लिए यूज होता था. सो दिस प्लांट इज कुरारे. ओके, सो राइट डाउन चिल्ड्रन द फोर्थ पिक्चर इन द चैप्टर नंबर 15 व्हेन द प्लांट टर्न्स डेडली इज कुरारे. ओके, सो राइट डाउन चिल्ड्रन कुरारे. यू कैन सी आपके हेल्प बॉक्स में वो दिया गया है, तो यू कैन इजीली राइट इट डाउन. Now children, the next deadly plant. Now you can look here. Here this is the plant. This is the plant, the fruit and its dried fruit. Okay, ये जो है ये सारे आपको अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पूरे ट्री का फोटो दे दिया गया है. द फर्स्ट वन इज द ट्री, सेकेंड इज द फ्रूट, द फ्रेश फ्रूट, एंड द थर्ड पिक्चर इज ऑफ द ड्राइड फ्रूट. ओके, सो द इंफॉर्मेशन given to us regarding this tree is, this tree's name is Kuchla tree. Okay, so it is also known as the Nux vomica, poison nut, and quaker buttons. Okay, just because it looks like button, you can look here. देखिए आप यहाँ पे
इट लुक्स लाइक अ बटन। सो इनके 3 नाम और हैं, जैसे अपार्ट फ्रॉम कूचला ट्री, ये प्लांट का और भी नाम है, दैट इज नक्स vomica, the poison nut and the quaker buttons. Okay, because you can see the seeds look like a button, so that is why they are also called as quaker buttons. Now this tree, it is found in India and Myanmar. So this tree is native to India, that means you can easily find it in India and Myanmar. Almost all the part of this plant contains poison, यानी ये जो कूचला ट्री है इसके हर पार्ट में आपको क्या मिलेगा, poison मिलेगा. Okay, now this tree is native to tropical and subtropical regions of Southeast Asia and Australia. Okay, in India it is distributed in most deciduous and semi-evergreen forest of Maharashtra, widely spreading across the Konkani and the Sahyadri foothills of Western Ghats up to the altitude of 400 meters. Now children, what does this mean कि ये जो प्लांट है आपको ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशिया में मिल जाएगा, विच क्लियरली एक्सप्लेन्स इंडिया एंड म्यांमार. ओके, तो ये कहाँ पे इंडिया में आपको कहाँ मिलेगा, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र. और महाराष्ट्र में भी अगर आप एक एग्जैक्ट लोकेशन अगर हम बताने की कोशिश करेंगे तो ऑन दी वेस्टर्न घाट्स, ओके, इन द फुट हिल्स, सह्याद्री फुट हिल्स एंड कोंकणी फुट हिल्स ऑफ दी वेस्टर्न घाट, यानी वेस्टर्न घाट के अंदर आपको कोंकणी और सह्याद्री फुट हिल्स में आपको ये वाले प्लांट्स देखने मिल जाएंगे. ओके, एंड दिस इज अवर मीन्स कूचला ट्री इज अ वेल नोन पॉइजनस प्लांट इन इंडियन आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम, यानी इसको एज अ मेडिसिन भी इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ने यूज़ किया गया है. ओके, इट इज़ डिस्क्राइब्ड अंडर द उपविशा गणा इन आयुर्वेद. तो ये कौन से गण के अंदर आता है आयुर्वेद में, ये आता है उपविशा गण में. ओके, अकॉर्डिंग टू आचार्य चारक, poison of this herb is used as a brilliant drug after purification or शोधन, बट इन हायर डोज इट एक्ट्स लाइक पॉइजन. ओके, तो ये जो है ये हेल्प करता है डाइजेशन में, ओके, आपकी बॉडी को प्योर करने में, लेकिन इसका हायर डोज आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है. ओके, so now, so you should always remember this is the Kuchla tree and this is poisonous. All the parts of this tree is poisonous, लेकिन इसे इंडियन आयुर्वेद यानी आयुर्वेद सिस्टम में इसे एज ए मेडिसिन भी यूज़ किया गया है, बट आप ये सब यूज़ नहीं करेंगे. वाई? बिकॉज यू आर नॉट ऑथराइज और हमको नहीं पता इसे कैसे यूज़ करना है. ओके, सो इसे एक मेडिसिन की तरह भी यूज़ किया गया है, बट आप इसे इस प्लांट से दूर रहेंगे. सो राइट डाउन चिल्ड्रन, दिस इज दी Kuchla tree, okay, which is found in India. Okay, so I hope you've written this. The first was the death cap, and then the second is the purple foxglove. Then you have potato, then curare, and then you have learned about the Kuchla tree. Now the next plant is the deadly nightshade. Okay, so we'll learn about the next plant, which is the deadly nightshade. Okay, you can see here, this is a very beautiful plant which has purple flower. Okay, this plant, okay, is native to Europe, North Africa and Western Asia. That means this plant is mostly found, and you can see these plants in Europe, North Africa and Western Asia. Its foliage and berries are extremely toxic. Okay, so now what do you mean by foliage? Foliage means जो सारे उसके leaves जो हैं, जो बहुत सारे एक साथ जो leaves का ढेर हो जाता है वो भी टॉक्सिक होता है, और इसके जो बेरीज होते हैं यानी इसका फ्रूट जो है वो भी टॉक्सिक होता है. इट कंटेन्स अ पॉइजन कॉल्ड एट्रोपिन. ओके, सो इसके पास कौन सा पॉइजन है? एट्रोपिन. ओके, इट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ यूज एज अ मेडिसिन. जैसे हमने देखा कि कुचला ट्री को भी एक मेडिसिन की तरह यूज़ किया गया था, डेडली नाइटशेड को भी एक मेडिसिन की तरह ही यूज़ किया गया था. ओके, सो एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द बेलाडोना. ओके, इसका एक और नाम है बेलाडोना. ओके,
Now children, write down deadly nightshade अपनी book में. So now you have learnt about 6 deadly plants. I hope you have written this in your book. Okay, so you have learnt about this 6 deadly plants, and I hope when you come across this plant you will stay away from such plants. Okay children, so now let us go to page number 28, chapter number 16, Hunters in the Sky. Now children, hunters in the sky. Birds are colorful creatures of flight. Many of them are flightless. There are some birds that are fierce hunter and fly in the sky. Means birds, as you know, they are very colorful creatures. आप देख सकते हैं बहुत सारे birds होते हैं जो काफ़ी कलरफुल होते हैं, जैसे कि पिकॉक. ओके, सो अब आपको यहाँ पर ऐसे बर्ड्स के बारे में बताया गया है जो काफ़ी फियर्स हंटर्स है, यानी वो दूसरे एनिमल्स को, दूसरे बर्ड्स को खा जाते हैं. ओके, सो ऐसे बर्ड्स के बारे में हम आज जानेंगे जो काफ़ी फियर्स हंटर है और सबसे ऊंचा फ्लाई करते हैं. ओके, दे फ्लाई हाई इन द स्काई. ओके चिल्ड्रन, सो हियर द फर्स्ट वन, एज यू कैन सी, दीज आर द यूरेशियन बर्ड्स. ओके, ये कौन से बर्ड है? दीज आर द यूरेशियन ब्लैक वल्चर. ओके, तो आप यहाँ पे फर्स्ट जो है उसके बॉक्स में लिखेंगे ई, बिकॉज दिस इज एन यूरेशियन ब्लैक वल्चर. नाउ दीज यूरेशियन बर्ड्स आर बॉल्ड हेडेड वल्चर विथ ब्लूइश ग्रे neck and they feed on decaying flesh of dead animals. यानी ये जो बर्ड है ये क्या है? ये एक वल्चर है और दूसरा ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. ओके, और ये आपको ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे देखने के लिए? ये आपको यूरोप में मिलेंगे, एशिया में मिलेंगे, स्पेन में मिलेंगे और कोरिया में भी मिलेंगे. एंड दीज बर्ड्स आर हाईली एंडेंजर्ड. आप इनका विंग स्पैन देख सकते हैं, ये कितना बड़ा बर्ड है. ये सुनो, आप देखिए ये कितना बड़ा बर्ड है और इनका जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है. ओके, एंड इन सम कंट्रीज दे आर ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटेंशन. यानी ये धीरे धीरे ये सारे जो ये ब्यूटीफुल सा बर्ड है दी यूरेशियन ब्लैक वल्चर, ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है. ओके, नाउ चिल्ड्रन यू कैन सी दिस बर्ड. ये है यूरेशियन ब्लैक वल्चर. ओके, and this is an endangered species. ये वल्चर है जो डेड एनिमल्स को भी खाता है. नाउ यू कैन सी यहाँ पर ये जो है कहाँ कहाँ मिलता है आपको. ऑन दिस मैप यू कैन लुक हियर. यहाँ पर आपको यूरेशियन ब्लैक वल्चर्स देखने मिल जाएंगे. ओके, these are some pictures of Eurasian black vulture. And this has a long, यानी सबसे बड़ा bird. Yes or no? Now this bird, this is the second bird. Okay, now what is this bird? This is an Andean condor. ओके, दिस इज एन Andean condor. आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा बर्ड है और इसका विंग स्पैन जो है, यानी इसकी जो यहाँ पे विंग स्पैन हम कैसे काउंट करेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो टोटल है ये होता है इनका विंग स्पैन. ओके, दीज प्रेडेटरी बर्ड्स हैव द लार्जेस्ट विंग स्पैन ऑफ 3 meters and are scavengers that feed on the carcasses of large animals. यानी इनका ये जो विंग स्पैन है वो लगभग 3 मीटर के आसपास होता है और ये जो है ये क्या करते हैं? लार्ज एनिमल्स की जो बॉडी होती हैं, जो डेड बॉडीज होती हैं, वो ये खाते हैं. ओके, नाउ these endangered birds also raid the nest of the other birds for young eggs and young hatchlings. यानी ये जो बर्ड है ये दूसरे बर्ड्स के नेस्ट में भी हल्ला कर बोल करते हैं, यानी दूसरे नेस्ट के बर्ड्स में भी जाके
दूसरे बर्ड्स के नेस्ट में भी जाकर ये उनके एग्स और उनके छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको खा लेते हैं। और ये बर्ड कैसा है, ये एंडेंजर्ड बर्ड। ओके, तो एंडियन कॉन्डोर जो बर्ड है इसका लॉन्गेस्ट विंग स्पैन होता है। इसके सारे रैप्टर्स यानी जो मीट ईटिंग या दूसरे एनिमल्स को खाने वाले जो वल्चर्स हैं उनमें सबसे बड़ा विंग स्पैन अगर किसी का है तो वो है एंडियन वल्चर का। ओके, now you can see the male has a large comb on his head that female lacks। यानी अगर आप देखें जो मेल बर्ड हो, जो मेल एंडियन कॉन्डोर है उसके सर पर एक जो है लार्ज कोम होता है, लेकिन ये फीमेल एंडियन कॉन्डोर में नहीं होता है। ओके, एंड इट इज ओके एंडियन कॉन्डोर हैज़ द ऑनर ऑफ बीइंग नेशनल बर्ड ऑफ सेवरल साउथ अमेरिकन कंट्रीज। यानी ये बहुत सारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज का नेशनल बर्ड है, इंक्लूडिंग बोलीविया, चाइल, कोलंबिया एंड इक्वेडोर। ओके, सो ये जो बर्ड है ये बहुत सारे कंट्रीज का जैसे बोलीविया, चाइल, कोलंबिया, इक्वेडर का national bird। Okay, this beautiful bird is a national bird also। Okay, you can see such a majestic bird। अगर आप यहाँ पे देखें जैसे टीचर ने कहा था, आपको बताया था करके इनके सर पर एक लार्ज कोम होता है। ओके, here you can see एंड अप क्लोज यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि इनके जो मेल होता है, जो मेल एंडियन कॉन्डोर होता है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये कैसा होता है, इनके सर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सिर्फ मेल को होता है और ये फीमेल को ये नहीं होता है। ओके, एंड दिस इंडियन कॉन्डोर्स जो हैं ये सिर्फ 1 एग ही प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर एवरी 2 years। ओके, आफ्टर 2 years ये सिर्फ एक ही एग जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो दिस इज द एंडियन रैप्चर। ओके, और इनका एक फुल्ली ग्रोन एडल्ट जो होता है वो लगभग 15 kgs का होता है। ओके, सो सी दिस बर्ड, यू कैन सी हियर दिस बर्ड इज ऑफ 15 kg। ये बेबी बर्ड है यानी ये हैचलिंग है, ये छोटा सा बर्ड है। Okay, here you can see this bird is eating its prey। Okay, now the next bird, now which is the next bird children? Okay, जो फर्स्ट वाला, so इससे पहले हमने किसको देखा था, एंडियन कॉन्डोर। जो सेकंड वाला है वहाँ पर आप बी लिखेंगे। now the third one is H। ओके, तो आप H लिखेंगे। H में क्या है, कैलिफोर्नियन कॉन्डोर। ओके, नाउ दीज आर कैलिफोर्नियन कॉन्डोर्स। नाउ वी विल लर्न अबाउट कैलिफोर्नियन कॉन्डोर्स। ओके, दीज आर द लार्जेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन फ्लाइट बर्ड्स। यानी उड़ने वाले बर्ड में, फ्लाइट मीन्स जो उड़ सकते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका के उड़ने वाले बर्ड्स में ये सबसे बड़े बर्ड हैं। कौन सा बर्ड है ये है कैलिफोर्नियन condor। Okay, though they weight about 12 kgs, they can still fly at a height of 4,500 meters even against the strong air current। इसका मतलब क्या है कि ये भले 12 किलो के हैं लेकिन ये बहुत ही ऊंचा उड़ सकते हैं, अप टू 4,500 meters। ओके, एंड इवन इन द स्ट्रॉन्ग एयर करंट्स, यानी जो स्ट्रॉन्ग एयर करंट है, यानी जो अगर बहुत तेज़ हवा भी चल रही है तो भी ये इजीली फ्लाई कर सकते हैं। ओके, सो दीस आर कैलिफोर्नियन कॉन्डोर। ओके, नाउ ये जो है ये आपको ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे, पैसिफिक बीचेस में, टू माउंटेन फॉरेस्ट, टू मीडोज। ओके, दे नेस्ट इन केव्स ऑन क्लिफ फेसेस इन दी माउंटेन अप टू 6,000 फीट इन एलिवेशन। यानी ये आप इनके जो नेस्ट है आपको ज़्यादातर पहाड़ों में मिल जाएंगे देखने के लिए। ओके, नाउ कैलिफोर्नियन कॉन्डोर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बर्ड्स इन नॉर्थ अमेरिका। ओके, इनके जो हाइट है लगभग फ्रॉम विंग टिप टू विंग टिप, यानी इनका जो विंग स्पैन है वो लगभग 9.5 फीट तक होता है। बट दे आर लिटिल शॉर्टर देन दी हाइट, यानी इनकी हाइट भले थोड़ी कम हो लेकिन इनका विंग स्पैन
बहुत ही बड़ा होता है। ओके, सो दीज आर दी Californian condor. Okay, in 1982 only 22 Californian condors were left in the world. Okay, यानी जब 1982 ईयर में यानी 1982 के साल में सिर्फ कितने कॉन्डोर्स थे कैलिफोर्नियन कॉन्डोर्स वर्ल्ड में? 22। लेकिन फिर बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने अपनी पूरी जान लगा दी, पूरा मेहनत लगा दिया, और अभी एट प्रेजेंट लगभग 500 कैलिफोर्नियन कॉन्डोर इजीली आपको वाइल्ड में उड़ते हुए मिल जाएंगे। सी सच एन इम्प्रेसिव वर्क, जहाँ पर सिर्फ 22 थे, अब कितने हैं? 500 है। एज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लिविंग रैप्टर्स इन द वर्ल्ड, कॉन्डोर्स में लिव अप टू 550 ईयर्स और मोर, यानी ये जो कॉन्डोर इनका लाइफ स्पैन यानी ये 50 साल के उम्र तक जीते हैं। ओके, There is no difference in physical appearance between male and female condors, यानी आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा फिजिकल। जैसे हमने देखा था कि एंडियन कॉन्डोर में मेल के ऊपर वो कोम्ब नहीं, मेल के ऊपर वो कोम्ब होता है, फीमेल के ऊपर वो कोम्ब नहीं होता है। लेकिन कैलिफोर्नियन कॉन्डोर में मेल एंड फीमेल बर्ड दोनों ही सेम दिखते हैं। ओके, सो लेड पॉइजनिंग इज द मेन थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ कैलिफोर्नियन कॉन्डोर, यानी कैलिफोर्नियन कॉन्डोर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ फेस हो रही है? लेड पॉइजनिंग। ओके, सो दिस इज द कैलिफोर्नियन कॉन्डोर। तो आप यहाँ पे थर्ड पिक्चर में यू विल राइट एच। ओके, सी नाउ द नेक्स्ट बर्ड। नाउ विच इज दिस नेक्स्ट बर्ड? कैन यू गेस द बर्ड? Yes, this is the Philippine eagle. Okay, this beautiful bird is the Philippine eagle. It was formerly known as monkey eating eagle also. इसे monkey eating eagle भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये जो नेटिव्स हैं वो कहते थे कि ये जो बर्ड है ये ज़्यादातर मंकीज को ही खाता था। कैन यू सी सच अ बिग बर्ड? ये इजीली मंकी को खा सकता है। नाउ दीज एंडेंजर्ड नेशनल बर्ड ऑफ फिलीपींस आर killed predator. Now you know this bird is the national bird of Philippines. Okay, now they fly and prey on flying lemurs and palm civets. Sadly they are on the brink of extinction. This beautiful bird, ये कैसा है? These are on the brink of extinction, यानी ये धीरे धीरे हमारे वर्ल्ड से ख़त्म होते जा रहे हैं। This bird, Philippine eagle. Okay, ये मतलब बहुत लोगों ने कहा था करके इनको पहले मंकी ईटिंग एनिमल्स भी कहा जाता था, क्योंकि वहाँ पर जितने लोग थे वो कहा जाता था कि वो कहते थे कि ये जो है ये बर्ड जो है बंदरों को खा जाता है, लेकिन ये बाद में इनकरेक्ट फाइंड किया गया था। ओके, ये बाद में पता चला कि ये ऐसा सिर्फ अफवाह है, ये एक म्योर, इट इज़ ओनली अ म्योर रूमर। देन इनका डाइट जो है वो पता चला कि इनके डाइट जो है बेसिकली रोडेंट्स का फॉर्म करता है। नाउ इनके जो डाइट्स हैं वो बेसिकली बैट, पिग्स, मॉनिटर लिजर्ड, यही सब होते हैं। ओके, सो ये एक बेसिक सिर्फ एक रूमर था, जिसका मतलब ये था कि वो मंकी ईटिंग बर्ड है। ओके, इन्हें मंकी ईटिंग ईगल भी कहा जाता है। एंड दिस बर्ड इज एंडेमिक टू फिलीपाइन। ओके, ये जो बर्ड है आपको ज़्यादातर या कहाँ देखने मिलेगा? फिलिपाइन में। इसीलिए रिसेंटली इनको नेशनल बर्ड ऑफ फिलिपाइन भी कहा गया है। और ये जो है द स्टेटस ऑफ नेशनल बर्ड ऑफ फिलिपाइन, ये जो स्टेटस जो इनको मिल गया है जिसके वजह से इनकी अवेयरनेस में बहुत ही बढ़ोतरी आई है और लोग जो है इजीली इनको अब जानने लगे हैं और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, यानी दे आर पुटिंग द एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट these birds. Why? Because these are the national bird of Philippines. Okay, they are under the threat from the declining and the fragmented habitat through commercial timber extraction, expanding agriculture, mining operation, uncontrolled hunting, pesticide accumulation and also severe weather events. यानी ये जो है ये धीरे धीरे extinct होता जा रहा है due to various एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि हम जो है पेड़ों को काटने लग गए हैं, एग्रीकल्चरल लैंड को यूज़ करने लग गए हैं, इसीलिए ये जो
मेजेस्टिक बर्ड जो है विच इज़ द फिलिपाइन ईगल, ये धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं. यू कैन सी द अप क्लोज फोटो ऑफ दिस फिलिपाइन ईगल. ओके, ये एंडेंजर्ड नेशनल बर्ड है फिलिपाइन का. ओके, यू कैन लुक हियर अगेन. This is the national bird of Philippines. Okay, such a majestic bird. Now, this beautiful bird is the, which bird is this? This is the golden eagle. Okay, this is the golden eagle. Now, these national birds of Mexico can dive at an amazing speed of 240 kilometers per hour. यानी ये हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही तेज़ उड़ने वाले बर्ड है. और ये किसका नेशनल बर्ड है? ये मेक्सिको का नेशनल बर्ड है. दे फीड ऑन रैबिट्स, स्क्विरल्स एंड बर्ड्स दैट दे स्नैच अप इवन फ्रॉम द ग्राउंड. यानी ये जो है ये रैबिट्स को खाते हैं, ये स्क्विरल को खाते हैं, और ऐसे बर्ड्स को भी जो ग्राउंड पे इनको मिल जाते हैं ये खा लेते हैं. दे ऑल्सो फीड ऑन कैरेकेसेस, यानी दे ऑल्सो फीड ऑन डेड बॉडीज ऑफ बिग एनिमल्स. ओके, दिस पावरफुल ईगल इज नॉर्थ अमेरिका's लार्जेस्ट बर्ड ऑफ प्रे एंड द नेशनल बर्ड ऑफ मेक्सिको. टीचर ने अभी बताया था आपको करके, ये जो है ये नेशनल बर्ड ऑफ मेक्सिको है. गोल्डन ईगल यूज देयर स्पीड एंड शार्प टैलेंट्स टू स्नैच अप रैबिट्स एंड ग्राउंड स्क्विरल्स. ओके, तो ये जो है अपने टैलेंट्स यानी जो अपने पंजे हैं उसको तुरंत ही वो अपनी स्पीड से इनको पकड़ लेते हैं. किसको पकड़ लेते हैं? ये रैबिट्स को पकड़ लेंगे, ग्राउंड स्क्विरल्स को पकड़ लेंगे. एंड दे हैव ऑल्सो बीन नोन टू अटैक अ फुल ग्रोन डियर. यानी ये इतने फियर्स प्रेडेटर्स हैं कि मतलब ये भी कहा जाता है कि ये फुल ग्रोन डियर यानी बहुत बड़े डियर इज अ बिग एनिमल कंपेयर टू अ गोल्डन ईगल. यस, तो उनको भी इन्होंने अटैक किया. ओके, ranchers once killed many of this bird for fear that they would prey on their livestock. Means ranchers once killed many of these birds for fear that they would prey on their livestock, but study shows the animal impact was minimal. यानी जो अपने लाइफ स्टॉक रखते थे यानी उस वहाँ के फार्मर्स जो थे वहाँ के यानी नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ पे लोग डरते थे इस बर्ड से कि उनको लगता था करके ये जो बर्ड है ये दूसरे एनिमल्स को या उनके लाइफ स्टॉक को खा जाएगा, इसीलिए ये बर्ड को बहुत ज़्यादा मारा गया था. लेकिन बाद में स्टडी से पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है. ये जो है ये सिर्फ रैबिट, स्क्विरल्स और दूसरे बर्ड्स को खाता है. Okay, it doesn't eat big animals, which is why today golden eagles are protected by law. Okay, तो इनको जो है बहुत ही प्रोटेक्ट करते हैं अब. Okay, and eagle can see much better than a human with perfect vision. Eagle की eyes जो होती है बहुत ही ज़्यादा sharp होती है. Okay, their keen eyes can see clearly and in color, allowing the eagle to spot the movement from a long distance. यानी ये दूर से भी easily अपने prey को पकड़ सकती हैं. Okay, with a broad rounded wings, the color of the eagle's feather ranges from brown, black to dark brown, but its striking gold head and neck that gives the bird its common name. यानी ये bird को जो है द गोल्डन ईगल, जो इसका स्ट्राइकिंग जो इसके हेड और इसके नेक पे जो गोल्डन कलर है इसीलिए इसको ये नाम दिया गया. द नेम इज द गोल्डन ईगल एंड दिस बर्ड इज द नेशनल बर्ड ऑफ मेक्सिको. ओके, नाउ सी, एन ईगल कैन रोटेट इट हेड्स अबाउट 270 डिग्री. ओके, टू लुक अराउंड यानी ये अपना हेड जो है 270 डिग्री तक रोटेट कर सकता है. एंड गोल्डन ईगल ऑल्सो हैव अ क्लियर आईलिड दैट प्रोटेक्ट द प्रेशियस आइज फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट. ओके, सो ये जो है
एक आउल की तरह अपना जो हेड है वो 270 डिग्री तक रोटेट कर सकती है, यानी इजीली ये जहाँ चाहे वहाँ देख सकती है। ओके, तो अपने आसपास के सराउंडिंग को ये जो ईगल है वो इजीली देख सकती है। एंड दिस ईगल ऑल्सो हैज़ अ क्लियर आईलिड। अगर आप यहाँ पे इसकी आंखों को ध्यान से देखें तो इसके पास क्लियर आईलिड है जो कि उनकी प्रोटेक्ट करती है उनके प्रेशियस आइज को फ्रॉम डस्ट एंड डस्ट। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन। ये जो फिफ्थ है आप F लिखेंगे वहाँ पर, F इज फॉर गोल्डन ईगल। Okay, so children, we will stop here for today and we will continue this in next lecture. Okay, so thank you children, have a nice day.